हालेलुया 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 स्तोत्रम आंडवर स्तुति हो प्रभु जी। உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். आपको धन्यवाद हम स्तुति करते உம்மை हैं। நன்றியோடு துதிக்கிறேன். आपको धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु जी। துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் என் தூயாதி தூயவனே, स्तुति के बीच वास करने वाले हमारे अच्छे पिता, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். आपको धन्यवाद और हम तारीफ करते हैं। இந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனைக்காய் உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் ये पवित्र आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। அப்பா, இன்றைய பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள நீர் எங்களுக்கு சகாயம் செய்தீரே, உமக்கு நன்றி. हे पिता, पवित्र आराधना में हमें शामिल किया, आपको धन्यवाद करते हैं। இந்த யூடியூபின் வாயிலாக ராஜா எங்களுக்கு பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனை நடத்த உதவி செய்த தயவுக்காய் உமக்கு நன்றி. ये यूट्यूब के जरिए प्रभु जी ये पवित्र आराधना करने के लिए दया दिखाए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। இந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனை நீரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் ये ஆண்டவரே. पवित्र आराधना आप संभालिए प्रभु जी। பாடல் வேலையிலும் ஆராதனை வேலையிலும் செய்தியின் வேலையிலும் எங்களோடு இடைப்படும் சுவாமி. गीतों के समय में, आराधना के समय में, वचनों के द्वारा आप हमारे संग रहिए पिता। நீர் எங்களோடு இருந்து வல்ல பெரும் காரியங்களை செய்ய வேண்டும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். आप हमारे साथ रह के बड़े सामर्थ्य के काम करिए, हम आपसे विनती करते हैं। கேட்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. सुनने वाले एक एक बच्चों को आप आशीष करिए प्रभु जी। அப்பா ஆமென். நம்முடைய வார்த்தையை கேட்கின்ற பொழுது ராஜா, आमीन पिता, आपके वचन सुनने के समय में பிள்ளைகள் ஏக சிந்தையோடு நம்முடைய வார்த்தையை தியானிக்க நீர் உதவி ये செய்யும். सारे बच्चे एक अच्छे सोच विचार के साथ अपने वचन को ध्यान करने के लिए अनुग्रह करिए। ஆவியானவர் அப்படியாய் செய்கின்ற தயவுக்காய் உமக்கு ये நன்றி. पवित्र आत्मा अपने करने वाले दया के लिए धन्यवाद करते हैं। நீரே இந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனை பொறுப்படுத்தி காத்து வழிநடத்தும் என் பரலோகத்து நல்ல பிதாவே. आप ही पवित्र आराधना में संभाल के चलाए हमारे परलोक के अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே அரணுக்கு திரும்புங்கள், இரட்டிப்பானதை தருகிறார், இன்றைக்கு திரும்புங்கள். நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே அரணுக்கு திரும்புங்கள், இரட்டிப்பானதை தருகிறார், இன்றைக்கு திரும்புங்கள். நீ விலக்கப்பட்ட உன் ஸ்தானத்துக்கே மறுபடியும் உன்னை அழைக்கின்றார். நீ விலக்கப்பட்ட உன் ஸ்தானத்துக்கே மறுபடியும் உன்னை அழைக்கின்றார். அவர் சொல்லிட்ட நல்வார்த்தை நிறைவேற்றினார். அலியா 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 அரணுக்கு திரும்புவோம். அலியா 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 கர்த்தரை உயர்த்துவோம். அலியா 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 அரணுக்கு திரும்புவோம். அலியா 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 கர்த்தரை உயர்த்துவோம். கொள்ளை கொண்ட உன் பட்டணத்தை மறுபடியும் குடியேற்றுவார். கொள்ளை கொண்ட உன் பட்டணத்தை மறுபடியும் குடியேற்றுவார். ராஜாக்கள் உன்னை தேடி வர வாசலை ராப்பகல் திறந்து வைப்பார். ராஜாக்கள் உன்னை தேடி வர வாசலை ராப்பகல் திறந்து வைப்பார். அவர் சொல்லிட்ட நல்வார்த்தை நிறைவேற்றினார். அலியா 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 அரணுக்கு திரும்புவோம். அலியா 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 கர்த்தரை உயர்த்துவோம். அலியா 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 அரணுக்கு திரும்புவோம். அலியா 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 கர்த்தரை உயர்த்துவோம். ஒடுக்கினரை குனிய செய்வார், பரியாசம் செய்யோரை
ரெட்டிப்பானதை தருகிறார். இன்றைக்கு திரும்புங்கள். நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, அரணுக்கு திரும்புங்கள். ரெட்டிப்பானதை தருகிறார். இன்றைக்கு திரும்புங்கள். நீ விலக்கப்பட்ட உன் ஸ்தானத்துக்கே மறுபடியும் உன்னை அழைக்கின்றார். நீ விலக்கப்பட்ட உன் ஸ்தானத்துக்கே மறுபடியும் உன்னை அழைக்கின்றார். அவர் சொன்னதை சிலுவையில் நிறைவேற்றினார். அலியா 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 அலியா, அரணுக்கு திரும்புவோம். அலியா 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 அலியா, கர்த்தரை உயர்த்துவோம். அலியா 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 அலியா, அரணுக்கு திரும்புவோம். அலியா 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 அலியா, கர்த்தரை உயர்த்துவோம். सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का
सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, अब प्रभु के सम्मुख में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे, इस परमेश्वर इस तीसरे सप्ताह को जो दिया है उसके लिए हम प्रभु को देखेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को स्तुति करेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे, क्योंकि स्तुति के योग्य केवल यीशु ही है। उस यीशु को देखेंगे, उस यीशु को धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि हम जितना ही परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं वो परमेश्वर के अपने समीप लेकर जाता है। उस यीशु को हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करते हैं। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। यीशु स्वामी आपको धन्यवाद करते हैं, महिमा के योग्य प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्यार प्रभु पिता आपको करोड़ों करोड़ धन्यवाद करते हैं, करोड़ करोड़ स्तुति करते, करोड़ करोड़ महिमा करते। प्यार प्रभु आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते हैं। पिता ये सुंदर समय दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते। पिता हे प्रभु यीशु ये आपकी महान दया है पिता परमेश्वर, इसलिए प्रभु आप अपने चरणों में पिता एकत्रित होने का मौका दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर इस सुंदर समय बना के दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता जब हम तेरे सम्मुख में आते हैं मेरे प्यार प्रभु, तब पिता हमारा हृदय आनंद से भर जाता पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता, आपको धन्यवाद करते, आपके नाम को ऊंचा करते प्यार प्रभु, और ऊंचा करते पिता। हालेलुया तेरी स्तुति करते, महिमा करते प्यार प्रभु, क्योंकि महिमा के योग्य कोई और नहीं, केवल यीशु तू ही है मेरे खुदावा पिता। इसीलिए पवित्र साथ में लिखा है मेरे प्यार प्रभु कि स्तुति के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर तू पवित्र है मेरे खुदावन। आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यार प्रभु पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते प्यार प्रभु पिता, आपको धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पल पल रक्षा करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता, अपनी दया को दिखाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता, अपनी करुणा को दिखाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं, ओ तेरी महिमा करते प्यार प्रभु पवित्र पिता को धन्यवाद, ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते प्यार प्रभु पवित्र पिता को धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना के योग्य परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, पल पल रक्षा करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद, ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मर रहा है मेरे खुदावा पिता। आज के दिन में पिता परमेश्वर हर एक जन प्यार प्रभु, हर एक बच्चे पिता परमेश्वर तुझसे आशीषित होकर जाए मेरे खुदावा। आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। वो दयालु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी दया बड़ी है मेरे खुदावा। आपको धन्यवाद हो प्रभु यीशु स्वामी, आपको धन्यवाद करते, महिमा के योग्य प्रभु आपको धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आज के दिन में पिता परमेश्वर जो लोग YouTube पे देखेंगे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन में देखेंगे मेरे प्यार प्रभु, वो हर एक जन पिता तुझसे आशीषित होकर जाए मेरे प्यार प्रभु पिता। आप ऐसे कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यार प्रभु। आपका पवित्र आत्मा एक एक से बातें करे मेरे पिता परमेश्वर पिता। आप ऐसे कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते प्यार प्रभु, और ऊंचा करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी महिमा हो प्रभु। ओ महान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, ओ दया के परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते प्यार प्रभु पिता। इसीलिए दाऊद राजा पिता परमेश्वर इस तरह से गीत को गाता है, मैं परमेश्वर को अपने सम्मुख में देखता हूँ, मैं कभी नहीं डिगूंगा, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। ओ प्रभु यीशु तेरी संगति पिता परमेश्वर प्रभु यीशु में दृढ़ करने वाली है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। ओ तेरी महिमा करते प्यार प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते मेरे पिता परमेश्वर पवित्र पिता को धन्यवाद, ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी महिमा हो
प्रभु। ओ तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते प्यार प्रभु पिता। यशायाह भी पिता परमेश्वर जिस तरह से गीत को गाता है कि अपने गले को खोल कर उस परमेश्वर को धन्यवाद करो, अपने अंदर मत कुछ रख छोड़ो, क्योंकि पिता पवित्र शास्त्र कहता तुम अपनी पूरी शक्ति से, पूरे मन से अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो, अपने परमेश्वर यीशु का धन्यवाद करो, उसके नाम की महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा करो, उसके नाम का गुणगान करो। ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो प्रभु, ओ धन्यवाद करते हालेलुया, ओ धन्यवाद हो प्रभु हालेलुया, ओ पवित्र पिता को धन्यवाद, ओ धन्यवाद हो प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं।
हालेलुया। ओ तेरे नाम को महिमा करते पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु तेरे नाम को ऊंचा करते पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, 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 स्तुति हो प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे, जितना हम स्तुति करते हैं उतना ही परलोक खुलता है, उसका प्रशंसा हमारे बीच में उतर कर आता है और हमारी सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को वो दूर करने वाला परमेश्वर हमसे बातें करता है। उस यीशु को धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे और ऊंचा करेंगे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई भी स्तुति के योग्य नहीं है, केवल स्तुति के योग्य यीशु है। जिसके नाम को स्तुति करते हैं तब बंधन खुल जाते हैं और उसका पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा सारे बंधन खुल जाते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, उसके नाम की महिमा होती है। यरीहो की शहर पनाह की तरह तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियों को दूर करने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। उस यीशु को धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं। ओ महान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, दया करने वाले परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। पिता तरस खाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता जो तूने हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने कलवारी क्रूस के ऊपर पिता अपने प्राणों को देकर पिता हमें जीवन दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पवित्र प्रभु आपको धन्यवाद। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं। वो यीशु आपके पास में है, वो आपके पास में खड़ा हुआ आपसे बातें करने वाला परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस यीशु को धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। पवित्र पिता को धन्यवाद। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। ओ तेरी महिमा करते प्यार प्रभु। पवित्र पिता को धन्यवाद। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी महिमा हो प्रभु। यीशु स्वामी आपको धन्यवाद करते, महिमा के योग्य पिता को धन्यवाद। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। ओ तेरी महिमा करते प्यार प्रभु। पवित्र पिता को धन्यवाद। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। ओ पवित्र प्रभु आपको धन्यवाद। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। ओ महिमा करते प्यार प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते पिता परमेश्वर और ऊंचा करते प्यार प्रभु। ओ धन्यवाद हो प्रभु। ओ मेरे यीशु आपको धन्यवाद करते हैं, पल पल रक्षा करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद। आपकी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपकी आंखें पिता परमेश्वर हर एक जन के ऊपर लगी रहती पिता परमेश्वर, धर्मियों के ओर लगी रहती प्रभु। इसके लिए करोड़ों करोड़ धन्यवाद करते हैं, करोड़ों करोड़ स्तुति करते हैं, करोड़ों करोड़ महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तो हमें अनाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है प्यार प्रभु पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। अपनी पंखों की आड़ में छुपा के रखने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यार प्रभु। पवित्र पिता आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। पिता निराशा के समय में पिता परमेश्वर अब्राहम आशा में रहा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु उसे जो वाचा बांधा पिता, उसे कहावत तेरे वंश को आकाश के तारों गणों के समान करूंगा मेरे खुदा। वो पिता आकाश के तारा गणों को देखकर आनंदित हुआ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु हमें इसलिए पिता हम भी आनंदित हैं पिता परमेश्वर, यदि तेरे सम्मुख में है प्यार प्रभु पिता, हम आनंदित हैं मेरे प्यार प्रभु। हमारा हृदय पिता परमेश्वर तुझमें प्रफुल्लित है पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्यार प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी महिमा करते प्यार प्रभु पिता। पिता जो हमारा
हृदय आनंदित होता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, तब एक एक जन पिता परमेश्वर तेरे साथ पिता उस संगति को पाता है मेरे प्यार प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते प्यार प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते प्यार प्रभु। पिता पल पल रक्षा करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते प्यार प्रभु। पवित्र पिता आपको धन्यवाद, ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता हम तेरी आत्मा से पिता परमेश्वर भाग कर छुप नहीं सकते मेरे प्यार प्रभु। तेरी आत्मा पिता परमेश्वर वो प्रशंसा पिता हमारे चारों ओर घेरे रहती प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा करते प्यार प्रभु। पिता आपको धन्यवाद करते, ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। पिता जो तेरे वचन के ऊपर पिता भरोसा रखते पिता परमेश्वर वो तेरी महिमा से घिरे रहते मेरे प्यार प्रभु। इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपका अनुग्रह दया रहता प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। अपने पंखों के आड़ में छुपाए रहते हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते प्यार पिता, आपको धन्यवाद हो प्रभु। ओ धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे हालेलुया।
यीशु तू महान है परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। Jesus. तू पिता पवित्र है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु तेरी दया बड़ी है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। पवित्र पिता आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति के योग्य पिता आपको धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते पिता परमेश्वर। पवित्र पिता आपको धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी महिमा करते प्यारे, तेरे नाम को ऊंचा करते पिता परमेश्वर। ओ पवित्र पिता आपको धन्यवाद, ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी महिमा करते प्यारे प्रभु, पवित्र पिता आपको धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जितने लोग यहाँ हैं वो ही आशीषित नहीं हो रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं वो सब आशीषित होंगे मेरे पिता। आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता तेरी दया सबके ऊपर है पिता परमेश्वर, उन लोगों के ऊपर है पिता परमेश्वर जो तेरे इस पिता आराधना में शामिल है पिता परमेश्वर, जो यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सब आशीषित हो रहे हैं पिता। आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। उनके बंधनों को प्रभु आप तोड़ रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उनके बीच से पिता परमेश्वर अशुद्ध आत्मा को भगा रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते पिता, एक एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर तेरी दया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते, तेरी करुणा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ओ तेरी महिमा करते प्यार प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते पिता परमेश्वर, और ऊंचा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जो समय को बिताते हैं तेरे सम्मुख में पिता परमेश्वर, उसका प्रतिफल वो कभी नहीं खोते मेरे प्यार प्रभु, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते प्यार प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते प्यार प्रभु। पिता आप ऐसे अनुग्रह कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। शत्रु के सारे बंधनों को पिता आप तोड़ रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। हमारे आगे आगे चलकर पिता परमेश्वर वो सारे बंधनों को तोड़ने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। पिता यरीहो की शहर पनाह की तरह पिता हमारे बंधनों को पिता परमेश्वर, हमारी रुकावटों को पिता आप दूर कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वो तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते प्यार प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपका सम्मुख पिता परमेश्वर जैसे ही मूसा के संग में आगे चला मेरे पिता परमेश्वर, यहोशुआ के आगे चला मेरे प्यार प्रभु, वैसे एक एक जन के साथ पिता उनके आगे आगे आपका सम्मुख चलने पाए पिता। आप ऐसे कर रहे हो प्रभु, इसके धन्यवाद राजा। हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं इस तेरी महान दया के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं, तेरी महान करुणा के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जो कलवारी क्रूस के ऊपर पिता इस जगत से प्रेम को दिखाया पिता, उसके लिए प्रभु आपको दया, उस दया के लिए प्रभु आपको करोड़ों करोड़ धन्यवाद करते हैं, करोड़ों करोड़ स्तुति करते हैं, करोड़ों करोड़ महिमा करते प्यार प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आज के दिन में पिता परमेश्वर इन सब लोगों को प्रभु आशीषित किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा प्रभु, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु इस दया के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता, इस चरणों में बैठने का मौका दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु सारे रुकावट सारे बंधन को तोड़ दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी विनती को सुन और कबूल कर प्रभु, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிப்போம். हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। மத்தேயு புத்தகத்திலே मत्ती की पुस्तक में 24வது அதிகாரம் 3வது வசனம் 24 अध्याय का 3रा वचन ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம். कोई एक जने पढ़ेंगे। जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा।
ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। தேவன் கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தைக்காய் தேவனுக்கு நன்றி प्रभु செலுத்துகிறேன் ने ये सुंदर वचन को दिए इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ஹalleluya हालेलुया। இந்த வசனத்தில் நாம் பார்க்கப்படும் பொழுது ये वचन को अगर हम देखें तो உம்முடைய வருகைக்கும் आपके आने के समय का உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன और संसार का अंत का चिन्ह क्या है என்று சொல்ல ऐसे कह के எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று हमें कहने के लिए எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று हमें कहने के लिए ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய திருச்சீஷர்கள் கேட்கத்தக்க வண்ணமாய் प्रभु காணப்படுகிறார்கள் यीशु मसीह से अपने चेले जो उनसे पूछते हैं। இந்த 24வது அதிகாரம் முழுவதும் பார்ப்போமேயானால் ये 24 अध्याय अगर हम पूरा देखेंगे तो வருகையின் அடையாளங்களை குறித்து தான் அதிகமாய் காணப்படுகிறது आने की यीशु मसीह आने के चिन्ह के बारे में इसमें ज्यादा लिखा हुआ है। தேவனுடைய வருகை परमेश्वर का आने का சமீபமான நாட்களில் बिल्कुल नजदीक दिनों में ஜனத்தொகை மிகவும் அதிகமாய் பெருகிக் கொண்டே போகிறது लोगों के साथ बहुत ज्यादातर बढ़ता जा रहा है। கர்த்தர் சொன்னார் परमेश्वर ने कहा நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்று तुम फलो फूलो और भूमि पूरा भर जाओ। கர்த்தர் சொன்னார் परमेश्वर ने कहा இன்றைக்கு ஜனங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி விட்டார்கள் आज संसार में पूरे फले फूले और लोग भर गए ஜனங்கள் கட்டுக்கடங்காததாய் காணப்படுகிறது और लोग जो बहुत सारे भरे हुए हैं। ஜனங்கள் பெருகினது மாத்திரமல்ல लोग बढ़े केवल इतने ही नहीं, பாவமும் பெருகிற்று उसके साथ पाप भी बढ़ गया। பாவமும் பெருகிற்று पाप भी बढ़ गया। பாவங்கள் பெருகினதினால் पाप बढ़ गया इसलिए பாவத்தின் விளைவாக पाप की जो मजदूरी பல நோய்கள் வந்து மனிதனை வாரிக்கொண்டு और போகிறது बहुत सारी बीमारी उनके संग मनुष्य के अंदर आ जाता है தீர்க்க முடியாத நோய்கள் காணப்படுகின்றன और जो एकदम सह नहीं सकता इतनी बीमारियां। பல வேளைகளில் டாக்டர்களாலே கண்டுபிடிக்காத முடியாத நோய்களும் कई காணப்படுகிறது बार डॉक्टर लोगों की समझ में नहीं आता, पहचान नहीं कर पाते ऐसी बीमारियां। எந்த நிமித்தம் வந்தது எதற்காக வந்தது என்று யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் और காணப்படுகிறது किस वजह से आए और क्यों आए और किसी को समझ में नहीं आ पाता। நீங்கள் எந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தாலும் आप कहीं पर भी मुड़ के देखो, உலகத்திற்கு வரப்போகிற அழிவை குறித்து தான் செய்திகள் கேட்க முடிகிறது दुनिया का अंत होने की खबर ही हर जगह सुनाई देती है। நீங்கள் எந்த நியூஸை பேப்பரை எடுங்கள் டிவி எடுங்கள் ரேடியோ எடுங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் நியூஸில் அழிவுக்குண்டான செய்தியை தான் கேட்க முடிகிறது अच्छा पेपर लो, न्यूज दो, कोई भी खबर देखोगे तो अंत की निशानियां ही आता जाता है। ஜனத்திற்கு விரோதமாக ஜனம் எழும்பத்தக்க வண்ணமாய் காணப்படுகிறார்கள் लोगों के विरुद्ध में लोग उठते हैं, எங்கு பார்த்தாலும் कहीं पर भी கொலை खून, கொள்ளை लूट, வெறித்தனம் एकदम विरोध कापन, ஜாதி பிரச்சனை जात पात का परेशानी, விரோதங்கள் विरोध, ஜாதிகளுக்கு விரோதமாய் ஜாதிகள் எழும்பி போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் एक जात के ऊपर दूसरी जाति में एकदम विरोध में लड़ाई करते रहते हैं। நாம் யாவரும் உலகத்தின் முடிவை தான் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம் हम सारी दुनिया के अंत को ही देखते जा रहे हैं। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। உலகத்தின் முடிவை நாம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம் अब दुनिया के अंत के में हम बिल्कुल नजदीक जाते आ रहे हैं। பூகம்பங்கள் ஏராளமாய் காணப்படுகிறது भूकंप बहुत सारे हैं பூமி எதிர்ச்சியிலும் ஏராளமாய் और காணப்படுகிறது भूकंप भूडोल भी बहुत जगह पर होते जा रहे हैं। இதற்கு மத்தியில் इसके बीच में इसके बीच में இயற்கையினால் ஏற்படும் மரணங்கள் ஏராளம் कुदरत के द्वारा मृत्यु बहुत सारा, அது ஒரு பக்கம் நடந்து वो கொண்டிருக்கிறது एक तरफ हो रहा है அழிவு பெருகி கொண்டிருக்கிறது और ये तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ஜனத்தொகையும் பெருகி இருக்கிறது और लोगों की चीजें भी बढ़ती जा रही है, பாவங்களும் பெருகி கொண்டே இருக்கிறது पाप भी बढ़ता जा रहा है இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சுவிசேஷமும் பெருகுகிறது और ऐसे हालात में सुसमाचार भी बढ़ता जा रहा है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூமி மேலெங்கும் உள்ள யாவரும் राज्य के यीशु समाचार भूमि के हर एक लोगों के पास சகல ஜாதிகளுக்கும் सारे जातियों में சாட்சிகளாக பிரசங்கிக்கப்படும் और गवाही के द्वारा प्रचार किया जाएगा। அப்போது முடிவு வரும் तब अंत आएगा, அப்போது முடிவு வரும் जब अंत आएगा। மத்தேயு 20:24 படி मत्ती 24 के अनुसार, மத்தேயு 24:24 24 का 24 के अनुसार வாசிக்க கேட்போம் हम पढ़ेंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया।
பாவங்களால் நிரம்பி இருக்கிறது. जो पाप से भरे हुए हैं, இந்த உலகம் முழுவதும் ये पूरी दुनिया வருகையின் அடையாளங்களால் நிரம்பி இருக்கிறது. आने की चिन्ह से भी भरे हुए हैं। கிறிஸ்துவினுடைய வருகை சமீபமாய் காணப்படுகிறது. मसीह का आने का बहुत निकट है, இதை நாம் மாற்றுவிக்க முடியாது. इसको हम ठुकरा नहीं सकते हैं இதை நாம் மறந்து ஜீவிக்க முடியாது. और इसे भूल के हम जी भी नहीं सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவே அறிவித்தார். यीशु मसीह ने खुद कहा है, இயேசு கிறிஸ்துவே அறிவித்தார். उन्होंने खुद कहा है। யோவான் 14:3 வாசிப்போம். योना 14:3 में हम पढ़ेंगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहीं तुम भी रहो। ஹalleluya. हालेलुया। நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்த பண்ணின பின்பு मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के बाद நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்கள் இருக்கும்படி जहाँ मैं रहूं वहीं तुम्हें भी रखने के लिए நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். मैं वापिस आके तुम्हें अपने यहाँ साथ ले चलूंगा। எவ்வளவு நல்ல வார்த்தை. कितना सुंदर वचन है। தேவன் நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்த பண்ணுகிறார். परमेश्वर ने हमारे लिए एक जगह तैयार करते हैं। இந்த வார்த்தைகள் இயேசு கிறிஸ்துவினால் சொல்லப்பட்டவை. ये वचन यीशु मसीह के द्वारा कहा गया। இது இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதியாகும். ये यीशु मसीह वचन के द्वारा होगा। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றத்தக்க வண்ணமாய் காணப்படுகிறார். उन्होंने जो अपनी वाचा दिया वो पूरे करते जा रहे हैं। அவர் பொய் சொல்ல மனுஷன் அல்ல. वो झूठ बोलने वाले मनुष्य नहीं மனம் மாற மனுபுத்திரனும் அல்ல. और मन बदलने का मनुष्य के पुत्र भी नहीं। அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ. अब वो कह के क्या नहीं करेंगे। நான் வருவேன் என்று சொன்னவர் நிச்சயமாய் வருவார். मैं आऊंगा जब उन्होंने कहा तो वो निश्चय जरूर आएंगे। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தைகள் यीशु मसीह ने जो कहा वो बातों को ஒன்றும் வீணாய் போவதில்லை. कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा। அவர் சொன்னபடியே நடக்கும். उन्होंने जैसे कहा वैसे ही होगा। அது சிறிய காரியமானாலும் சரி, वो चाहे छोटे काम क्यों ना हो, பெரிய காரியமானாலும் சரி, चाहे वो बड़े काम क्यों ना हो, கர்த்தர் அதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். और परमेश्वर वो पूरा करने में सामर्थ्यशाली है। அவர் நமக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறார். वो हमारे लिए काफी है। மனிதனை சிருஷ்டிக்கும் முன்னே मनुष्य को सृष्टि करने से पहले உலகத்தை அவர் ஆயத்தப்படுத்தினார். संसार को उन्होंने तैयार किया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। 6 நாட்களில் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்து முடித்தார். 6 दिन सब कुछ बना के खत्म किया। 6 நாட்களில் உருவாக்கப்பட்ட உலகம் எத்தனை அழகாய் இருந்தது. 6 दिन से तैयार किया हुआ पूरी दुनिया कितना सुंदर है। 6 நாட்களில் உருவாக்கப்பட்ட உலகம் எத்தனை அருமையாய் இருந்தது. 6 दिन से कितना तैयार किया हुआ दुनिया कितनी सुंदर थी। நமக்காக வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போய் ஏறக்குறைய 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது. और हमारे लिए जो द्वार तैयार करने गए हमारे कम से कम 2000 साल से ऊपर हो चुके हैं। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த 2000 ஆண்டுகளாக ये 2000 साल तक அவர் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்துகிற அந்த ஸ்தலம் वो हमारे लिए जो जगह तैयार कर रहे वो जगह எவ்வளவு அழகாய் இருக்கும் என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். इतना सुंदर होगा, हम सोच के देख सकते हैं। அவர் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணுகிற வாசஸ்தலம் वो हमारे लिए जो तैयार करने गए वो जगह எத்தனை மேன்மையுள்ளதாய் और காணப்படுகிறது. कितना बहुमूल्य होगा। அவர் வாசம் செய்யும் ஸ்தலத்திலே वो जहाँ वास करते वो जगह நாமும் வாசம் செய்யும்படி हम भी वास करने के लिए அவர் நமக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் செய்கிறார். हमारे लिए वो एक जगह तैयार करते हैं। எவ்வளவு உன்னதமான இடம். और कितना अच्छा जगह होगा। இந்த வார்த்தையை வாசிக்கப்படும் பொழுதே ஒரு சமாதானம் ये वचन காணப்படுகிறது. पढ़ते के समय एक मन में समाधान आता है, காரணம் அவர் வாசம் செய்யும் ஸ்தலத்திலே நாமும் வாசம் செய்ய போகிறோம். क्योंकि वो जो वास करते उसी जगह पर हमें भी वास मतलब रखेंगे। வேதம் சொல்லுகிறது. बाइबल कहती है எபிரேயர் 10:37 इब्रानियों 10:37 வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் வருவார். आने वाले अभी थोड़े दिनों में आएंगे, தாமதம் பண்ணார். लेट नहीं होगा। எபிரேயர் 10:38-39 इब्रानियों 10:38 और 39 விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். विश्वास के द्वारा धर्मी जिएगा। பின்வாங்கி போனவானால் यदि कोई पीछे लौट जाए तो அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமா இராது. उनके ऊपर मेरा आत्मा प्रसन्न नहीं रहेगा। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் கெட்டு போக பின்வாங்குகிறவர்களாய் இராமல் हम नाश होने के लिए पीछे लौटने वाले ना होते हुए ஆத்துமா ஈடேற आत्मा आगे बढ़ने में விசுவாசிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். और हम विश्वास करने वाले रहेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று நமக்கு வேதம் கூறுகிறது. विश्वास के द्वारा धर्मी जिएगा करके वचन कहता है। யார் ஒருவர் தேவன் மேல் விசுவாசம் கொண்டு நம்பிக்கை கொண்டு அவரோடு வாசம் செய்கிறார்களோ जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के विश्वास
रख के उनके साथ रहने वास करता है அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குறைவும் ஏற்படுவதும் இல்லை. और उनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। மத்தேயு 1:22 படி मत्ती 1:22 के अनुसार கர்த்தருடைய வருகை குறித்து ஏராளமான தீர்க்க தரிசனங்கள் வேதத்தில் இருக்கின்றன. मसीह के आने के भविष्यवाणी के वचन बहुत सारा है बाइबल के अंदर। ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம். மத்தேயு 1:22. कोई एक जना पढ़ेंगे मत्ती 1:22। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் भविष्यवाणी के द्वारा கர்த்தராலே உரைக்கப்பட்டது. मसीह के द्वारा कहा गया நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது என்றும் पूरा होने के लिए सब कुछ வேதத்தில் பல இடங்களில் நாம் பார்க்கலாம். बाइबल में हम कई जगह पर हम देखते हैं। வேதத்தில் நாம் பல இடங்களில் பார்க்கலாம். बाइबल में कई जगह पर हम देखते हैं। வேதத்தை வாசிக்கப்படும் பொழுது जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो அநேக இடங்களில் कई जगह पर தீர்க்கதரிசிகளின் மூலமாய் भविष्यवाणी के द्वारा கர்த்தரால் உருவாக்கப்பட்டது, கர்த்தரால் உரைக்கப்பட்டது, நிறைவேற்றப்பட்டது என்று அநேக இடங்களில் நாம் பார்க்கலாம். परमेश्वर के द्वारा तैयार किया, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, परमेश्वर के द्वारा कहा गया करके कई जगह पर हम देखते हैं और पढ़ते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கன்னி பிறப்பை குறித்தும் यीशु मसीह के द्वारा जो कुंवारी के जन्म के बारे में கிறிஸ்துவின் வளர்ப்பை குறித்தும் और मसीह की बढ़ने के बारे में கிறிஸ்துவினுடைய பாடு மரணங்களை குறித்தும் और मसीह की दुख की मृत्यु के बारे में கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும் और मसीह की जी उठने के बारे में தீர்க்கதரிசிகள் என்னென்ன சொன்னார்களோ அத்தனை தீர்க்கதரிசிகளும் நிறைவேறி இருக்கின்றன. और भविष्यवक्ता जो जो बातें कहा है वो सारी बातें इसमें पूरी होती गई है। ஆகையினால் நாம் கர்த்தருடைய வருகைக்கு எவ்வளவு துரிதமாய் ஆயத்தப்பட வேண்டுமோ इसीलिए मसीह के आने के लिए हम कितनी तैयार होना चाहिए அவ்வளவாய் நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். और उतने हमें तैयार होना चाहिए। கிறிஸ்துவின் பாடுகளை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். मसीह की दुखों को हम जानते हैं। அவர் நமக்காகவே சிலுவையை சுமந்தார். वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गए, அவர் நமக்காகவே முள்ளிடத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். हमारे लिए उन्होंने कांटों का तहज पहना அவர் நமக்காகவே தசையடிகளை ஏற்றுக்கொண்டார். और हमारे लिए चाबुक की मार सही பாவமான அந்த சிலுவையை அவர் நமக்காகவே சுமந்தார். और वो पाप के क्रूस को हमारे लिए उन्होंने उठाया। ஒரு பாவம் அறியாத என் தேவாட்டு குட்டியானவர் பாவமான அந்த சிலுவையை சுமந்தார். और कोई भी पाप नहीं जानता हमारे मेमना जो उन्होंने उस क्रूस को उठाया। பரிசுத்தமுள்ள அவர் ரத்தத்தை நமக்காக சிந்தினார். पवित्र उनका लहू हमारे लिए बहाया। அப்படிப்பட்ட தேவனை தான் இன்று நாம் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். ऐसे परमेश्वर की आज हम आराधना करते हैं அப்படிப்பட்ட தேவன் மீது தான் நாம் விசுவாசம் வைத்திருக்கிறோம். और ऐसे परमेश्वर की पर हम विश्वास रखते हैं அப்படிப்பட்ட தேவன் மீது தான் நாம் நம்பிக்கை और வைத்திருக்கிறோம். ऐसे परमेश्वर की पर हम भरोसा करते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। யார் குடும்பத்தில் தேவனை முதன்மையாக வைத்து குடும்பத்தின் தலைவராக வைத்து வாழ்கிறார்களோ जो कोई व्यक्ति अपने परिवार में पहला मुख्य स्थान परमेश्वर को आगे रख के यदि कोई चलता हो, அவர்கள் குடும்பத்தில் ஒரு குறைவும் இல்லை. आमीन, उनके परिवार में कोई कमी घटी नहीं होगी। வேதம் சொல்லுகிறது बाइबल कहती है சிங்க कुட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாய் கிடக்கும். जवान सिंहों तो घटी होंगे और भूखे रह सकते हैं கர்த்தரை தேடுவோருக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது और जो என்று. यहोवा की खोजी है उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। கர்த்தரை தேடி அவருடைய திருப்பாதமே தஞ்சம் என்று வாழ்பவருக்கு ஒரு குறைவும் இல்லாமல் காக்க வல்லவராய் जो இருக்கிறார். परमेश्वर को खोज के उनके चरण में रहने वालों को किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। ஹalleluya. हालेलुया। தீர்க்கதரிசிகளால் உரைக்கப்பட்டபடியே கர்த்தருடைய வருகை மிகவும் சமீபமாய் और காணப்படுகிறது. मसीह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया मसीह के आने के समय बहुत नजदीक और निकट है। ஹalleluya. हालेलुया। தேவ தூதர்களின் அறிவிப்பை பார்க்கப்படும் பொழுது स्वर्गदूतों की बातों को अगर हम देखेंगे तो கர்த்தருடைய வருகையை குறித்து தேவ தூதர்களையும் பேசுவதை நாம் பார்க்கலாம். मसीह के आने के बारे में स्वर्गदूत भी जो कहा गया बातों को भी हम सुन सकते हैं। இயேசு பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் நேரம் வந்தது. जब यीशु मसीह को परलोक ले जाने के समय आया தன் சீஷர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் और अपने चेलों से बातें करने के समय में ஒலிவ மலைக்கு அருகாய் சென்றார். वो जलपाई पर्वत के पास गए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। தன் சீஷர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கப்படும் பொழுது अपने चेलों से बात करने के समय में அவர்கள் அவரை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது தானே जब उन्होंने उनको देखते के समय में ஒரு மேகமானது அவரை சூழ்ந்து கொண்டது. एक मेघ उनकी ओर घेर लिया அவர் பரலோகத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். और वो जब परलोक में उठा लिए गए, அவர் பரலோகத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். जब वो परलोक को उठा लिए गए तो அந்த வேளையில் 2 தூதர்கள் வானத்தில் தோன்றினார்கள். और उस समय 2 स्वर्गदूत ऊपर दिखाई दिए। அவர்கள் சீஷர்களை
பார்த்து वो जब चेलों को देख के என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா? क्या कहा मालूम है? அப்போஸ்தலர் 1:12 வாசியுங்கள். प्रेरितों काम का पहले का 12 पढ़ेंगे, 1:11. पहले का 11 सॉरी। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। ஹalleluya. हालेलुया। தேவ தூதர்கள் சொல்லுகின்ற காரியத்தை கவனித்து பார்க்க வேண்டும். स्वर्गदूत जो कहते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए। இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ, यीशु मसीह कैसे आपके आंखों के सामने आकाश में उठा लिए गए, அப்படியே மறுபடியும் வருவார். वैसे ही वो लौट के आएंगे, அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள். ऐसे ही वो लौट के आएंगे। தேவ தூதர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த காரியத்தில் स्वर्गदूतों के द्वारा बताया गया इस बातों को நாம் அஜாக்கிரதையாய் நிர்விசாரமாய் இருந்தால் வரும் தண்டனைக்கு எப்படி தப்புவிக்க கூடும்? हम सावधान और अच्छे से चेतावनी से रहेंगे, आने वाले दंड से हम कैसे बच पाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। தேவ தூதர்களால் அறிவித்த அறிவிப்பு, जो स्वर्गदूतों के द्वारा बताई गई ये बातें, இயேசுவானவர் எப்படி பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ, यीशु मसीह कैसे परलोक में उठा लिए गए, வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ, आकाश में उठा लिए गए, அப்படியே மீண்டும் வருவார். ऐसे ही वो लौट के आएंगे, அப்படியே மீண்டும் வருவார். ऐसे ही वो लौट के आएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த வார்த்தையை நான் நம்பி விசுவாசித்து காணப்பட வேண்டும். उस बातों को हमें भरोसा भी करना और विश्वास भी करना है। இயேசு எப்படி வானத்திற்கு எழுந்தருளி போனாரோ, यीशु मसीह कैसे आकाश में उठा लिए गए, அப்படியே மீண்டும் வருவார். ऐसे ही वो लौट के आएंगे। இயேசு உயிர்த்தெழுந்த சிறப்போடு வானத்திற்கு ஏறி போனது போல, जैसे यीशु मसीह जी उठने के बाद आकाश में वो चढ़ के जैसे गए, உயிர்த்தெழுந்த சிறப்போடு கூட திரும்பியும் வருவார். और जैसे उठ के गए वैसे वो लौट के भी आएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த நாள் சமீபித்திருக்கிறது. वो दिन एक चुना हुआ है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதப்படும் பொழுது, प्रेरितों काम में पौलुस और फिलिपियों के लिए जब लिखते हैं तो பிலிப்பியர் 3:20, फिलिपियो 3:20, நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது, हमारा जो स्वतंत्र जगह परलोक में है, அங்கே இருந்து கர்த்தராகிய हम वहाँ रह के परमेश्वर से ஹalleluya இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து और கொண்டிருக்கிறோம். यीशु मसीह हमारा उद्धार करता हमारा इंतजार में है। நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. हमारा जो स्वतंत्र जगह परलोक में है அந்த வாஞ்சை நமக்கு வேண்டும். और वो उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए। ஆம் பிரியமானவர்களே, கொஞ்ச காலம் தான் இந்த உலக வாழ்க்கை. हाँ मेरे प्रिय लोगों, थोड़े दिन है ये दुनिया के जीवन, கொஞ்ச காலம் தான் இந்த உலக வாழ்க்கை. थोड़े दिन हम ये दुनिया का जीवन, ஆனால் लेकिन பரலோகத்தில் இருக்கின்ற வாழ்க்கை நித்தியமானது. लेकिन परलोक का हमारा जो जीवन अनंत अनंत तक है। மனிதர்கள் அன்பு மாறலாம், मनुष्य का प्रेम बदल सकता है, உற்றா உறவுகள் அன்பு மாறலாம், रिश्तेदारों का प्रेम बदल सकता है, தேவனுடைய அன்பு மாறாதது. परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता, தேவனுடைய அன்பு மாறாதது. परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता, தேவனுக்கு அன்பு நிகரை யாரும் இல்லை. परमेश्वर का प्रेम का बराबर और कोई है ही नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। ஒவ்வொரு சீஷர்களும், एक एक चेले, ஒவ்வொரு அப்போஸ்தலர்களும் एक एक प्रेरित பெரும்பாலும் கிறிஸ்துவனுடைய வருகையை குறித்தே அவர்கள் பிரசங்கித்தார்கள். हमेशा मसीह का आने के बारे में उन्होंने प्रचार किया। அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை குறித்து பிரசங்கித்தார்கள். उन्होंने यीशु मसीह के नाम के बारे में प्रचार किया, அவருடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பேசினார்கள். उनके राज्य के बारे में बातचीत की, கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து பேசினார்கள். मसीह की जी उठने के बारे में उन्होंने बताया தேவனுடைய வல்லமையை குறித்தே அவர்கள் और பேசினார்கள். मसीह की सामर्थ के बारे में उन्होंने बताया। ஆம் பிரியமானவர்களே, हाँ मेरे प्रिय लोगों, நாமும் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். हमने भी प्रभु को ग्रहण किया है, அவருடைய கரத்தில் உள்ள வல்லமையை நாம் அறிந்து இருக்கிறோம். उनके हाथों की सामर्थ को हमने जान रखे है, அவருடைய கரத்திலிருந்து நாம் ரட்சிப்பை பெற்றிருக்கிறோம். उनके हाथों से उद्धार को हमने पा रखा है, அவருடைய விலையேற பற்ற பரிசுத்தமுள்ள ரத்தத்தினால் நாம் கழுவி இருக்கிறோம். उनकी बहुमूल्य लव से, पवित्र लव से हम धुले हुए हैं, தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் மாறி இருக்கிறோம். हम परमेश्वर की संतान बदले हुए हैं। அப்பா பிதாவே என்று அழைப்பதற்கு புத்திர சுவீகாரத்தை கொடுத்த தேவன், अप्पा पिता करके पुत्र होने का स्वतंत्र दिया अधिकार परमेश्वर, நம்முடைய குறைகளை எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நிறைவாக்கி தர வல்லவராய் இருக்கிறார். हमारी सारी कमियों को मसीह यीशु के द्वारा पूरा करने में सामर्थ्यशाली है। உலக பிரகாரமாக தாய் தன் பிள்ளைகளை எப்படி பாதுகாப்பாளோ, दुनिया के अनुसार माँ अपने बच्चों को कैसे देख रेख करती है,
தாய்க்கும் மேலான அன்பு, माँ से बढ़कर प्रेम, தாய்க்கும் மேலான அன்பை தருகிறவராயிருக்கிறார். वो माँ से बढ़कर प्रेम हमें देने वाला है। வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் நான் உன்னை தேற்றுவேன். एक माँ जैसे तसल्ली देती वैसे मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। கலங்காதே, திகையாதே, நான் உன்னை ஆதரிப்பேன். अब मत घबरा, मत परेशान हो, मैं तुम्हें तसल्ली देने वाला हूँ। நான் உன்னோட கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வேன். मैं तुम्हारे साथ रह के बड़े काम करूंगा। தேவன் கொடுத்த இந்த வருடத்தின் வாக்கு தத்தத்தின்படி परमेश्वर ने दिया इस साल के वाचा के वचन के अनुसार நான் உன்னோட கூட இருப்பேன். मैं तेरे साथ रहूंगा। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இவ்வருடம் முழுவதும் தேவன் நம்மோட கூட இருந்து வல்லபெரும் காரியங்களை செய்கிறவராய் இருக்கிறார். ये पूरा साल हमारे साथ परमेश्वर रह करके बड़े और सामर्थ्य के काम करने वाले सामर्थ्यशाली है। தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் परमेश्वर की संतान हम அவருடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கிக்கின்றவர்களாய் நாம் காணப்பட उनके வேண்டும். राज्य के बारे में प्रचार करने वाले होने चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। அவருடைய கரத்தில் இருந்து अनेक நன்மைகளை நாம் பெற்று இருக்கிறோம். उनके हाथों से हमने बहुत सी भलाइयों को पाया है தேவனுடைய கரத்தில் இருந்து பெற்ற நன்மைகளை அநேகருக்கு நாம் சாட்சியாக சொல்லப்படும் பொழுது और परमेश्वर की भलाई जो हमने पाया बहुतों की जब गवाही देंगे तो ஹalleluya, தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படத்தக்க வண்ணமாய் आमीन। காணப்படுகிறது. परमेश्वर के नाम की महिमा होता है। தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நம் நிமித்தம் परमेश्वर की संतान हमारे द्वारा தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக, और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்காகவே நாம் காணப்பட வேண்டும். और परमेश्वर की नाम महिमा होने के लिए हमें होना चाहिए। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அவர்களுடைய சீஷர்களைப் போல उनके चेलों के जैसे இயேசு கிறிஸ்துவின் மேன்மையை குறித்தே நாம் பாராட்ட வேண்டும், பேச வேண்டும். यीशु मसीह की बड़ाई के बारे में हमें देखना है और उनके बारे में ही बात करनी है। ஒருபோதும் நம்மை நாம் மேன்மைப்படுத்த கூடாது. कभी भी हमें अपने आप की ना बड़ाई नहीं करनी चाहिए। நம்மை ரட்சித்த தேவன், हमें जो उद्धार किया प्रभु, நம்மை பாவங்களில் இருந்து விடுவித்த தேவன், हमारे पापों से हमें छुड़ाया परमेश्वर, அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தத்தக்க வண்ணமாய் நாம் காணப்பட उन्हीं के வேண்டும். नाम की महिमा करने वाले होना चाहिए। தேவன் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर आज और कल कभी नहीं बदलने वाला है। ஹalleluya. हालेलुया। அவருடைய வருகைக்காக தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் காத்துக் கொண்டு और இருக்கிறார்கள். उनके आने के लिए मसीह के बच्चे हर कोई इंतजार में हैं। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த கொடூரமான வைரஸ் நிமித்தம், ये बेकार भयंकर वायरस के द्वारा, ஹalleluya, இந்த கொடூரமான வைரஸ் நிமித்தம் ये बेकार भयंकर वायरस के द्वारा எத்தனை ஜனங்கள் कितने लोग பாடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். कितने लोग परेशान हैं, எத்தனை பேர் வேதனை அடைந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். कितने लोग वेदना के अंदर है। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனையோ பிள்ளைகள் வேலை இல்லாமல் பசியும் பட்டினியுமாய் காணப்படுகிறார்கள். कितने लोगों के पास काम धंधा नहीं है, भूखे और प्यासे रहते हैं। இன்றைய காலகட்டத்தில் உண்ண உணவுக்கும் உடுக்க உடைக்கும் இருக்க இடத்திற்கும் अनेक கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். आज के हालात में खाने में नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, बहुत चीजों से कष्ट में रहते हैं वो लोग। ஹalleluya. हालेलुया। இன்றைய காலகட்டத்தில் आज के समय में இந்த வைரஸ் ஒழிய வேண்டும், அழிய வேண்டும் என்று சொல்லி ये वायरस पूरा नाश होने के लिए अनेक இடங்களில் ஜெபங்கள் நடந்து கொண்டு बहुत இருக்கிறது. सारी जगह पर प्रार्थनाएं हो रही है, ஜெப குழுக்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. प्रार्थना का झुंड चल रहा है கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஜெப குழுக்களை நடத்தி கொண்டு और இருக்கிறார்கள். मसीह के बच्चे प्रार्थना सभाएं चलाए जा रहे हैं। அதன் நிமித்தம் उसके द्वारा தேவனுடைய பிள்ளைகள் காக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். और परमेश्वर के बच्चे जो बचाए जाते हैं, முதலாவது இதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். पहले हमें इन्हीं बातों को विश्वास करना है। தேவன் நம்மோடு இருப்பதால் தான் परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए இவ்வளவு கொடூரமான வைரஸில் இருந்து நம்மை தேவன் காக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். इतने भयंकर वायरस से प्रभु हमें बचाने में सामर्थ्यशाली है। அப்படிப்பட்ட தேவனை ऐसे परमेश्वर को ஒவ்வொரு நாளும் நாம் மகிமைப்படுத்தத்தக்க வண்ணமாய் காணப்பட வேண்டும். हर एक दिन हम उनकी महिमा करने वाले होना चाहिए। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए एक एक बच्चे அவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று சாட்சியாய் வாழ வேண்டும். उनके नाम की महिमा के लिए गवाही में जीना चाहिए சாட்சியின் ஜீவியத்தோடு காணப்பட வேண்டும். और गवाही की जीवन में रहना चाहिए। நாம் தியானித்தது போல जैसे हमने ध्यान किया, பாவங்கள் பெருகி இருக்கிறது. पाप तो बढ़े हुए हैं, பாவங்கள் மிகவும் பெருகி இருக்கிறது. पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, விசேஷித்த வண்ணமாய் विशेष करके வாலிப பிள்ளைகள் மூலம் जवान बच्चों के द्वारा अनेक பாவங்கள் பெருகி கொண்டு और இருக்கிறது. बहुत सारा पाप बढ़ता जा रहा है। எது செய்யலாம் எது செய்யக்கூடாது என்கின்ற யோசனை இல்லாமல் பிள்ளைகள் பாவத்தில் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். क्या करना क्या नहीं करना करके बच्चे पाप में डूबे हुए जा रहे हैं। ஆகையினால் தான் நமக்கு சொல்லுகிறது பாவங்கள் பெருகிறது. इसीलिए हमें कहते हैं कि पाप तो बढ़ता जा रहा है। பாவங்கள்
பெருகினது நிமித்தம் पाप बढ़ता इसके लिए இப்படிப்பட்டதான நோய்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கு. और ऐसी बीमारियां बढ़ता जा रहा है। தேவன் தாமே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விடுதலை தந்து காத்தருள வேண்டும். परमेश्वरी मसीह के बच्चों को छुटकारा देके रक्षा करना है। கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் मसीह को ग्रहण किए हुए एक एक बच्चे அழிந்து போகின்ற ஆத்மாக்களுக்காக ஜெபத்திலே தாங்க வேண்டும். नाश होने वाली आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பிள்ளைகள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். कितने बच्चे नाश होते जा रहे हैं। விசேஷித்த வண்ணமாய் ஸ்கூல் படிக்கும் பிள்ளைகள், காலேஜ் படிக்கும் பிள்ளைகள் எத்தனை அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். विशेष करके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे कितने नाश होते जा रहे हैं। தன் ஆத்மாவையும் தன் சரீரத்தையும் கெடுத்துக்கத்தக்க வண்ணமாய் காணப்படுகிறார்கள். अपने आत्मा अपने शरीर को नाश करने वाले बनते हैं। எத்தனை பிள்ளைகள் தாய் தந்தைக்கு அடங்காத வண்ணமாய் காணப்படுகிறார்கள். कितने बच्चे माता पिता की बातों को नहीं मानते எத்தனை பெற்றவர்கள் தன் பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீர் வடித்துக் और கொண்டிருக்கிறார்கள். कितने माता पिता अपने बच्चों के लिए आंसू बहाते हैं। ஐயோ என் பிள்ளை இப்படியாய் காணப்படுகிறானே, அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படியாய் இருக்குமோ என்று எவ்வளவு பாரத்தோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். हाय मेरे बेटा ऐसा है, उसका जीवन क्या होगा करके वो कितने बोझ के साथ वो लोग प्रेयर करते हैं। தேவன் தாமே மனமறங்கி இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக தேவனிடத்தில் சமூகத்தில் நாம் மனமறங்கி ஜெபிக்க வேண்டும். परमेश्वर से दया करके ऐसे बच्चों के लिए हम दया दिल खोल के उनसे प्रेयर करनी चाहिए। தேவனே இந்த அழிந்து போகின்ற ஆத்மாக்களை தொடும். परमेश्वरी नाश होने वाली आत्माओं को लिए छूइए। இந்த அழிந்து போகின்ற ஆத்மாக்களை தொடும். नाश होने वाली आत्मा के लिए छूइए। பிலிப்பியர் 3:20 சொன்னது போல फिलिपियो 3:20 में जैसे कहा गया है, நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. हमारा जो रहने का स्थान परलोक में है। அங்கே இருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். वहां पर से हमारे उद्धारकर्ता हमारे इंतजार में है। ஹalleluya. हालेलुया। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வர ரட்சகர் வர காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். हर एक बच्चे मसीह उद्धारकर्ता आए हैं करके उनका इंतजार में होना चाहिए அவருடைய வருகையிலே தானும் காணப்பட வேண்டும் என்று தன்னை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர்களாய் காணப்பட और वो வேண்டும். लोग भी मसीह के आने के लिए अपने आप को तैयार और उनका इंतजार में होना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படியாய் நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் முழு மனதோடு காத்திருக்கப்படும் பொழுது ऐसे जब परमेश्वर के सम्मुख में पूरे मन के साथ रहेंगे तो தேவன் கட்டாயம் இந்த பிள்ளைகளை விடுவிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார். परमेश्वर जरूर इन बच्चों को छुटकारा देने वाले बनते हैं। தேவனுடைய விடுதலை கிடைக்கப்படும் பொழுது परमेश्वर की छुटकारा जब मिलेगा तो பிள்ளைகள் விடுதலை அடைவார்கள். बच्चे छुटकारा पाएंगे பிள்ளைகள் விடுதலை அடைவார்கள். और ये बच्चे छुटकारा पाएंगे। இன்றைய காலகட்டத்தில் ஜெபம் தான் அதிக தேவையாய் காணப்படுகிறது. आज के समय में प्रेयर ही बहुत ज्यादा जरूरी है। ஜெபத்தினால் தான் நாம் ஜெயத்தினை மேற்கொள்ள முடியும். प्रार्थना के द्वारा हम जय को जीत सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஜெபம் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கை ஆகாது. बिना प्रार्थना का कोई जीवन जीवन नहीं है ஜெபமே ஜீவியமாய் காணப்பட और வேண்டும். प्रार्थना ही जीवन है हमारा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் கொடுத்த இந்த வசனத்தை வைத்து, ये परमेश्वर ने दिया ये वचन के रख के, தேவன் கொடுத்த இந்த வார்த்தையை வைத்து, परमेश्वर ने दिया ये बातों को रख के, தேவன் கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நான் அதிகமாய் ஸ்தோத்திரம் परमेश्वर ने செலுத்துகிறேன். दिए इतनी सुंदर वचनों के लिए हम ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? आपके आने में और दुनिया के अंत के चिन्ह क्या हैं? எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சீஷர்கள் தேவனை நோக்கி கேட்கப்படுகிறார்கள். हमें कहने के लिए चेले जब यीशु मसीह से पूछने के समय में ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. आपको धन्यवाद हम स्तुति करते உம்மை हैं प्रभु। நன்றியோடு துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே. आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। இயேசுவே நீ கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தைக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் यीशु ஆண்டவரே. इस सुंदर वचन को दिया आपको धन्यवाद करते हैं। பாவங்கள் பெருகிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த கால சூழ்நிலையில் पाप बढ़ रहा है आजकल के समय में, அதன் நிமித்தம் ஏற்படுகின்ற நோய்கள், उसके द्वारा आने वाली बीमारियां, அழிவுகள், नाश, ஆவியானவரே ये पवित्र आत्मा, இயேசுவே நீர் ராஜா காத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. यीशु आप रक्षा करिए पिता। ஆமென். இந்த பொல்லாத வைரஸிலிருந்து உம்முடைய ஜனங்களை நீர் காப்பாற்றும் ये ஆண்டவரே. भयंकर बीमारी वायरस से आप अपने लोगों को बचाइए पिता। அப்பா உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் हे पिता ராஜா. आपको धन्यवाद हम स्तुति करते உம்மை हैं। நன்றியோடு துதிக்கிறேன் आपको ஆண்டவரே. धन्यवाद और स्तुति करते நீ हैं। கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தைக்காய் உமக்கு நன்றி आपने ஆண்டவரே. दिए वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। இந்த வார்த்தையானது ஒவ்வொருடைய இருதயத்திலும் பேசத்தக்க வண்ணமாய் ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் தொட வேண்டும் ஆண்டவரே. ये वचन हर एक से बात करने के लिए, एक एक हृदय को छूने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி ராஜா. हे पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं। இந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனை யூடியூபின்
மூலம் நடத்த எங்களுக்கு உதவி செய்த தயவுக்காய் மக்கு ये நன்றி. पवित्र आराधना यूट्यूब के द्वारा में चलाने के लिए अनुग्रह के आपको धन्यवाद करते हैं। உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. आपको धन्यवाद पिता, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. आपको धन्यवाद प्रभु இயேசுவே உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். यीशु, आपको धन्यवाद हम स्तुति करते हैं। முற்றிலும் இந்த வைரஸ் ராஜா நீங்க நீர் உதவி செய்யும். पूरी रीति से वायरस खत्म करने के लिए आप सहायता करिए। சபைகள் எல்லாம் திறக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. सारे कलिसिया खुलने पाए प्रभु जी, சபைகள் எல்லாம் திறக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. सारे कलिसिया खुलने पाए प्रभु जी, மூடப்பட்ட ஆலயங்கள் திறக்கப்படட்டும் जो बंद ஆண்டவரே. किए हुए कलिसिया खुलने दीजिए पिता। ஆவியானவரே மனமிறங்கும் அப்பா. हे पवित्र आत्मा दया करिए, உம்முடைய வேதத்தில் நீர் சொல்லி இருக்கிறீரே ராஜா. आपने वचन में कहा है प्रभु जी, ஆமென். சபை கூடி வருதலை கைவிட்டு விடாதிருங்கள் என்று आमीन, कलिसिया की संगति को ना छोड़ना। இன்றைய கால சூழ்நிலை நிமித்தம் आज के हालात की वजह से ஆமென் சபை கூடி வராமல் காணப்படுகின்ற நிலைமை நீர் जो அறிந்திருக்கிறீர் कलिसिया में ஆண்டவரே. शामिल नहीं हो पा रही ये हालात आप जानते हैं प्रभु जी। ஒரு விசையா நீர் மனமிறங்கும் ஆண்டவரே. एक बार दया करिए पिता, உம்முடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் நடந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும் आपकी ஆண்டவரே. वचन के द्वारा चलने के लिए आप हमारी मदद करिए। ஆமென். உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ராஜா. आमीन, आपको धन्यवाद हम स्तुति करते हैं। மிக சீக்கிரத்தில் ஒவ்வொரு ஆலயங்களும் திறக்கப்பட நீர் உதவி செய்யும் आमीन, बहुत ஆண்டவரே. जल्दी से सारे कलिसिया खुलने पाए प्रभु जी। ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி ராஜா. हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद உம்மை करते हैं। நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். आपको धन्यवाद हम स्तुति करते हैं। நீரே காத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. आप ही संभालिए प्रभु जी। இந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனை நடத்த நீர் எங்களுக்கு காட்டின கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ये ஆண்டவரே. पवित्र आराधना करने के लिए आप अनुग्रह कृपा दिखाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। கேட்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும் आमीन, ஆண்டவரே. सुनने वाले बच्चों को एक एक आप आशीष करिए। ஒருவருக்கும் இந்த வார்த்தை வெறுமையாய் ஆகாத வண்ணமாய் किसी को भी वचन खाली ना लौटने पाए। ஒவ்வொரு வாழ்க்கைக்கும் தேவையான வார்த்தையா நீர் மாற்றும் हर ஆண்டவரே. एक के जीवन में जरूरत वाला वचन बनाइए प्रभु जी। கேட்கின்ற ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் உம்முடைய ரட்சிப்பு உருவாகட்டும் ஆண்டவரே. सुनने वाले हर एक के हृदय में आपका उद्धार होने दीजिए पिता। பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே அப்படியாய் செய்கின்ற தயவிற்காய் மக்கு हे நன்றி. पवित्र आत्मा पे ऐसे करने वाले दया के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। சகல துதி கன மகிமை யாவும் உமக்கே ஏறெடுக்கிறேன். सारी स्तुति महिमा आदर इज्जत सब कुछ आपको देते हैं। மெய்ப்பெரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. उद्धारकर्ता हमारे यीशु मसीह के अच्छे पवित्र नाम से मांगते पिता, ஆமென். आमीन। ஆமென். ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் हमारे यीशु मसीह के कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का सारा सहयोग சகல பரிசுத்தவான்களோடும் सारे पवित्र लोगों के साथ சபையார் அனைவரோடும் और कलिसिया वालों के साथ கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நிலைத்து நிற்பதாக. मसीह के आने तक रहने पाए। ஆமென். आमीन। ஆமென்.